Morning, dear students. In our previous class, we have learned what are the significance of DDL command. Today, we will learn what is DML command and what is the use of DML command. We know that DML stands for Data Manipulation Language, and if I want to insert any data and if I want to change and do any modification in our data, then I will use the DML command. Right now you can see on the right side there is a table. This is a table, but there is no data is inserted here. Okay, so if I want to insert any data, then on that case I have to use the DML command, and our first DML command is insert. By using insert, I will insert that data in that table. Okay, so what is the command? I will write insert into the name of the table. Name of the table is that 12th. Insert into XII and then values can be ID, name and class. And ID, we know that ID is of integer type, so I will write 1. We know that name is of string type, and I will write is on double quotes or single quotes. I will write this as Ram. Then class, we know that class is also of integer type, then I will write 12th, then semicolon. If I write that command, this command will insert data here 1 Ram and class 12. Okay, now one more command, insert into then table name 12th. In the bracket I will write ID and class, then I will write values, and here I will in the bracket I will write 2 and 12. Okay, now what this query will do, this query will insert 2 here and 12 here, and because I am saying here I want to insert the data in the table 12 only in ID and class field. Here I am not I didn't write the name field, so I am inserting the data in ID and class, and my values are 2 and 12. Okay, so here it will be written as null because there is no value. Okay, if I return nothing here, by default it will insert the value in the all columns. Okay, but if I want to insert the value in any particular column, then I will write the field name of that particular column. Okay, so this is how insert query will work. Now our second query is update. Now update means, let us suppose I want to do change. Let us suppose in स्कूल में इन बैनर स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स का एक क्या है, एक डेटाबेस बना हुआ है, एंड वहां पर उस डेटाबेस में लेट अस सपोज आपको आपका मोबाइल नंबर चेंज करना होता है. ठीक है, तो वहां पर जो मोबाइल नंबर आपका चेंज होगा, वो मोबाइल नंबर कैसे चेंज होगा, विद द हेल्प ऑफ अपडेट क्वेरी. बिकॉज आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी क्या है, स्टोर्ड है, तो वो इन्फॉर्मेशन एकदम से बिल्कुल स्टार्टिंग से तो फिल नहीं होती. सिर्फ मोबाइल नंबर क्या होता है आपका चेंज होता है. सो वो कैसे पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ अपडेट क्वेरी. अब यहाँ पर ये जो देखो, ये डेटा इंसर्टेड है. इस इंसर्टेड डेटा में मुझे क्या करना है, यहाँ पर 12th के बिहाफ पे यहाँ पर लिखना है 11. ये 12th रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, क्लास 11th लिखना है, इसे अपडेट करना है. ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड लिखेंगे. इसके लिए कौन सी कमांड होती है, मेरी अपडेट कमांड होती है. अब अपडेट कमांड अगर मैं ऐसे लिखता हूं, अपडेट
XII set class इक्वल्स टू 11। अगर मैं ये कमांड लिखता हूं तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जितने भी आपके 12th है वो क्या बन जाएंगी, 11 बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि जो क्लास है वो क्लास को 11 कर दो, तो जितने भी क्लास का पूरा जो क्लास का फील्ड है वो क्या बन जाएगा, मेरा 11 बन जाएगा। बट यहाँ पर जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू को ही चेंज करना है, मुझे सिर्फ ID2 को चेंज करना, ID1 को चेंज मुझे नहीं करना था। मुझे ये जो वैल्यू थी इसको 12 से रखना था, ठीक है, इसको 11 करना था। बाय डिफॉल्ट ये 12 है, ठीक है, इसको 11 करना था। तो वो कैसे पॉसिबल है, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, एक क्लॉज होता है वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज का यूज करके मैं इसको अचीव करूंगा। इस कमांड को उसके बाद इस कमांड को ऐसे लिखा जाएगा, अपडेट 12th सेट क्लास इक्वल्स टू 11 वेयर ID इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहां पर बोल रहे हैं कि मुझे क्लास को 12th करना है, लेकिन सिर्फ कहां पर करना है, जहां पर ID2 हो। तो वहां पर क्या होगा कि ये वाली वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी, सिर्फ ID2 वाली वैल्यू में जो क्लास वाला फील्ड है वो आपका 12 से कन्वर्ट होके कितना बन जाएगा, 11 यहां पर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम अपडेट कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक, नाउ डिलीट कमांड सेम वे पे अगर आपको लेटर सपोज यहां पर मैं एक और एंट्री यहां पर लिखता हूं 3 और यहां पर लिख देता हूं गीत और यहां पर मैंने लिख दिया लेटर सपोज क्लास 12th। ओके, अब मुझे ये वाली एंट्री को क्या करना है, डिलीट करना है। ये वाला जो स्टूडेंट है लेटर सपोज उसने अपनी टीसी इशू करा दी है, अगर टीसी इशू करा दी है तो उसका जो नेम है वो डेटाबेस से क्या हो जाना चाहिए, स्टक ऑफ हो जाना चाहिए। तो उसके लिए जो कमांड है, ठीक है, तो कमांड होगी डिलीट फ्रॉम XII वेयर ID इक्वल्स टू 3। जैसे ही मैं कमांड यहां पर लिखूंगा तो ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अब यहां पर जरूरी नहीं कि आप ID इक्वल्स टू 3 ही लिखो, आप यहां पर ये भी लिख सकते हो नेम इक्वल्स टू गीत, आप ये भी लिख सकते हो। अब लिखने को यहां पर ये भी लिख सकते हो कि क्लास इक्वल्स टू 12। बट अगर आप क्लास इक्वल्स टू 12 लिखोगे तो यहां पर दो क्लास क्या है, 12 से बिलोंग है, तो यहां पर क्या होगा आपकी, अगर आप ये कमांड लिखोगे तो दोनों की दोनों एंट्रीज आपकी डिलीट हो जाएंगी, आपका राम भी डिलीट हो जाएगा और गीत भी डिलीट हो जाएगा। बट आपको क्या करना था, सिर्फ गीत को डिलीट करना था। तो आप इसीलिए यहां पर क्या कर सकते हो, यहां पर ये जो क्लास 12th है ये आप इसको नहीं लिख सकते, बिकॉज जो क्लास जो 12th है ये आपकी क्या है, यूनिक वैल्यू नहीं है, ये डुप्लीकेसी यहां पर है। तो इसलिए आप यहां पर या तो लिखोगे वेयर ID इक्वल्स टू 3 और नेम इक्वल्स टू गीत। अगर आप ये कमांड लिखोगे तो उन दोनों केसेस में जो ये वाली एंट्री है वो क्या हो जाएगी, इस टेबल से डिलीट हो जाएगी। ठीक, एंड द लास्ट इज सेलेक्ट कमांड। नाउ स्टूडेंट्स, जो मेन जो यूज होता है वो डेटाबेस का, वो होता है इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए। जैसे गूगल जब भी आप करते हो तो गूगल में इंफॉर्मेशन को सर्च करते हो, गूगल में ना तो आप गूगल के डेटाबेस में कोई इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करते हो, ना उस इंफॉर्मेशन को आप मॉडिफाई करते हो। जो भी इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करी होती है आप सिर्फ और सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हो डेटाबेस से। ठीक, तो अगर आपकी इंफॉर्मेशन को चेक करना है, लेटर सपोज मुझे चेक करना है कि आपकी फीस जो है वो सबमिट हुई या नहीं हुई, अगर आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या सेकंड इंस्टॉलमेंट आपने फी को पे किया है या नहीं किया है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, आपका सेलेक्ट कमांड का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कुछ बेसिक आपके कमांड के टाइप होते हैं। जो फर्स्ट है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम XII। अगर आप ये लिखोगे तो वो क्या करेगा, इस पूरी की पूरी टेबल को शो कर देगा, वो क्या करेगा, पूरी की पूरी डेटाबेस को शो कर देगा। बट हमें क्या करना है, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट हमारी है कि हमें पूरे के पूरे डेटाबेस को शो नहीं करना, कि एक पर्टिकुलर एंट्री को ही शो करना है, जैसे मुझे सिर्फ राम की एंट्री देखनी है या मुझे सिर्फ ID1 की एंट्री देखनी है। ठीक, तो यहां पर मैं कमांड लिखूंगा सिंपली सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम XII वेयर ID इक्वल्स टू 1। तो और यहां पर या इस तरह से भी लिख सकता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम XII वेयर नेम इक्वल्स टू राम। अगर मैं ये दोनों कमांड लिखूंगा तो वहां पर क्या होगा, ये सिर्फ कौन से एंट्री शो करेंगे, वो एंट्री शो करेंगे जिसकी ID 1 है। तो यहां पर ये वाली एंट्री मेरी, जो यहां पर ये एंट्री है, ये मेरी शो हो जाएगी फर्स्ट एंट्री 1 राम एंड 12। और अगर मैं ये भी लिखता हूं तो यहां पर भी मुझे सेम ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, यहां भी मुझे सिर्फ वही एंट्री शो करने देखने को मिलेगी। ठीक, एक और चीज, अब लेटर सपोज आपको सारी एंट्री देखनी नहीं, आपको सिर्फ क्या देखना है, सिर्फ ID और नेम देखना है, या नेम ऑफ क्लास देखनी है, ID आपको नहीं देखनी। तो आप यहां पर लिखोगे कमांड सेलेक्ट नेम क्लास फ्रॉम XII वेयर you can say ID equals to 1। ओके, सो अब ये जो कमांड है वो मुझे क्या रिजल्ट शो करेगी, वो एक टेबल इस तरह से मुझे शो करेगी जिसमें आपके दो को फील्ड होंगे, एक होगा उसमें नेम और एक होगा क्लास और ID 1। तो यहां पर क्या शो करेगी, राम एंड 12 शो करेगी, बिकॉज मेरी कमांड है कि मुझे क्या सेलेक्ट करना है, सिर्फ नेम और क्लास को सेलेक्ट करना है, किससे, टेबल XII से, जहां पर जो ID हो मेरी 1 हो, ID मेरी 1 है, उस ID 1 से मुझे सिर्फ नेम और क्लास को शो करना है। तो वहां पर नेम और क्लास से वो वाले एंट्रीज होंगी, बाकी एंट्रीज मेरी शो नहीं होंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम DML कमांड का यूज कर सकते हैं। जो बेसिक DML कमांड है वो आपकी इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है और सेलेक्ट है। इन सब का यूज आप इस तरह से अपनी टेबल में, अपने डेटाबेस में कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।